हाँ, okay. Hello, hello everybody. Last class, I think we have finished till the page number 79, and we have finished till probiotics, right? So we were on the page number 79. We will continue further. After probiotic, we have to start. Okay. Yes, I think this part we have finished last class, and we have to start with this question. Use your brain power, and the question is: in the earlier class, yeast for the observation of yeast, which substance is prepared by it used on commercial basis. आप yeast से क्या क्या commercial basis substance को produce कर सकते हो? In earlier class, you have prepared a solution of dry yeast, and with the help of yeast, what are the substance you can prepare on the basis of commercial basis? तो commercial basis मतलब with respect to industry. तो इससे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? याद होगा हमने लर्न किया था, क्या क्या लर्न किया था? What we can make bread, we can make a beer, we can make a wine, we can make a cider, we can make a vinegar, we can make cocoa, we can make ethanol. ऐसे बहुत सारी चीजें substance है which we can make with the help of yeast. So on the commercial basis, yeast is used for making a bread, can be used for making a beer, can be used for making a wine, can be made cider, we can make a vinegar, we can make a cocoa powder, we can make an ethanol. ऐसे all different substances can be made with the help of dry yeast. You understood? Now one by one, some substance will be learned which can be made with the help of yeast. The first substance which they have given is the bread. So what they've given about the bread, I'm reading it. Okay, different types of bread. ध्यान देना screen पे ध्यान देना. I'm reading it. Different types of breads are produced from a flour of cereals, and dough is formed by mixing a baker's yeast. This is the yeast बहुत सारे type के होते हैं. This is the baker's yeast जो bakery में use करते हैं for making a bread and cake, and that is Saccharomyces cerevisiae, the special type of yeast which we use to for the preparation of the bread is Saccharomyces cerevisiae. इसका pictures मैंने download किया है, मैं आपको बताऊंगा. First I will read this and then I will show you the picture. इससे time save होगा. तो different types of breads are produced from the flour of cereals. Cereals के flour से हम बना सकते हैं. Dough is formed by adding water, and dough is formed by mixing a उसके अंदर बेकर इज ऐड करना कौन सा सैक्रोमाइसिस की वजह से साथ में वाटर salt and other necessary materials with a flour. This is what we are learning, how to make a bread. हम लर्न करेंगे कैसे ब्रेड फॉर्मेशन होता है. तो क्या करना है बेटा, मेक अ फ्लोर ऑफ सेरिल्स, डफ तैयार करो बाय यूजिंग अ यीस्ट सैक्रो स्पेशली इज कॉल्ड एज द सैक्रोमाइसिस cerevisiae. Put some amount of water, put some salt and other necessary materials with the flour. Due to fermentations, which process will take place? Fermentation. What is fermentation? A anaerobic chemical reaction take place in which ethanol and a carbon dioxide is formed, done by anaerobic microorganisms. Anaerobic matlab a microorganisms which respire in the absence of oxygen. So the chemical reaction which take place in the absence of oxygen is called fermentation process. So the bread is formed with the help of a chemical reaction called fermentation, which is done in the absence of oxygen. Due to fermentation of carbohydrate by yeast, sugar is converted. The sugar which is present in the cereals or in the flour is converted into what? Carbon dioxide. मैंने आपको बताया fermentation में होता क्या है? Carbon dioxide and ethanol is formed in the absence of oxygen. देखो same thing they have given. Due to fermentation, the carbohydrate which was present in the flour, a chemical reaction take place. उस chemical reaction का नाम है fermentation. It is done with the help of a special type of fungus called as yeast. उसका नाम भी दिया है Saccharomyces cerevisiae. And वो क्या करेगा बेटा? Sugar को finally ethanol और carbon dioxide में convert करेगा. The duff rises. क्यों? When the carbon dioxide escape, the carbon dioxide ऊपर आएगा, they apply the push, so the duff rises due to carbon dioxide and the bread becomes spongy. तो जो sponginess आता है bread के अंदर, वो sponginess क्यों आता है बेटा? Because when the carbon dioxide arises, they apply the push on the duff and the duff becomes spongy or the bread becomes spongy. Understood? बहुत easy process हमने lower standard में भी learn किया है. कॉम्प्रेस इसको कॉम्प्रेस क्योंकि हाई कॉम्प्रेस मतलब हाई अमाउंट ऑफ ईस्ट लगेगा किसमें? यूज इन अ कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री. इफ आई मेकिंग इन अ कमर्शियल बेसिस मतलब तो घर बनाने पे भी हम यूज कर सकते हैं. वी कैन मेक इट एट होम जो ऊपर का, लेकिन अगर आपको कमर्शियली बनाना, कमर्शियल मतलब इफ यू वांट टू सेल इन द मार्केट फॉर मनी, सप्लाई करना है अलग अलग शॉप्स बना के,
तो compress, इसको compress करना. Compress is used इसमें high amount of, okay, in a commercial bakery industry. It is available in a dry or in a granular. You know, granular मतलब small grains. In a dry, in a granular form for domestic use. Yeast produced for commercial use contains various useful content. Yeast produced for commercial use contain, जो commercial use के लिए use होता है, various यूजफुल कंटेनर, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, फैट्स भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रेजेंट, यानी ऑलमोस्ट ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ये सब क्या है? दिस ऑल आर द 5 मेन न्यूट्रिएंट्स: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो द कमर्शियल यूज के लिए जो हम ब्रेड बनाते हैं उसमें almost all type of nutrients are present, and due to this the bread and other products produced with the help of yeast become nutritive, ज्यादा न्यूट्रिटिव हो जाता है. क्यों? कि कमर्शियल हमने उनके एक्सटर्नली क्या क्या बेटा ईस्ट के अंदर हम ऐड कर देते हैं ऑल द 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. डेफिनेटली द ब्रेड फॉर्मेशन जो होगा उसके अंदर भी सारा न्यूट्रिशंस प्रेजेंट है, एंड दैट ब्रेड व्हिच वी विल ईट विल गेट ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इज हाईली न्यूट्रिटिव. इसे मालूम है किसी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स भी बोलते हैं भाई ब्रेड खिला दो एंड ऑल. ओके, न्यूट्रिशंस इंग्रेडिएंट्स लाइक विनेगर, okay, soya sauce, monosodium, ajinomoto, पता है ना, that are used in presently popular are prepared by microfermentation. खाली ब्रेड बनाने में यूज नहीं होता है, हम विनेगर को बना सकते हैं. सोया सॉस मतलब सोयाबीन का सॉस, that I will show you मैंने पिक्चर्स निकाला है. एजिनोमोटो मालूम है आपको? याद होगा चाइनीज फूड में बहुत ज्यादा यूज होता था, बीच में बैन लगाया था उसके ऊपर, राइट? मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाला है, उसका नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट. Scientific name is monosodium, मतलब single sodium. I will tell you the chemical formula for Ajinomoto is C5H8NO4Na. C5H8NO4Na. तो Na is sodium और C5H8NO4 is glutamate. तो monosodium glutamate. Glutamic acid, glutamate is the part of glutamic acid. एक एनाइन है, तो ग्लूटामेट के अंदर जब सोडियम लग जाता है इट बिकम्स मोनोसोडियम ग्लूटामेट एंड इट इज एजिनोमोटो. इसे फॉर्मूला भी देखो, C5H8NO4 ग्लूटामेट और आगे जो Na लगा हुआ है सोडियम, तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट. फॉर्मूला से पता चल रहा है. ओके, द मेन एलिमेंट इसका है ग्लूटामिक एसिड. ग्लूटामिक एसिड से बनता है. इज वन टाइप ऑफ एमिनो एसिड. यू नो व्हाट इज एमिनो एसिड? व्हाट इज एमिनो एसिड? एमिनो एसिड इज द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन. एमिनो एसिड ही ज्वाइंट होके क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. तो एमिनो एसिड मतलब प्रोटीन. तो ग्लूटामिक एसिड इज वन टाइप ऑफ एमिनो एसिड, मतलब इट इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन. एंड ग्लूटामिक एसिड का भी कौन सा पार्ट? ग्लूटामेट, वो ज्यादा यूज होता है. दे आर मेड फ्रॉम अ शुगर केन. फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन, मैंने बताया फर्मेंटेशन से खाली ब्रेड फॉर्म नहीं होता है. विनेगर का प्रोडक्शन पढ़ेंगे. विनेगर आपको पता है एसिटिक एसिड, 4% ऑफ एसिटिक एसिड, बाकी वाटर है. सोया सॉस, उसका भी पिक्चर्स में दिखाऊंगा, सोयाबीन से बनता है. एजिनोमोटो है, ओके, इज वन काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट दैट इज यूज्ड टू मेक अ फूड स्पेशली इन चाइनीज. बट इसके ऊपर आई थिंक बैन लगाया, राइट? क्योंकि बैन क्यों लगाया? कि जो नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा था. कि जो ग्लूटामिक एसिड है इज यूज्ड फॉर रिस्पांसिबल फॉर सेंडिंग अ सिग्नल्स इन द नर्व्स के अंदर जो सिग्नल सेंडिंग का काम है वो ग्लूटामिक एसिड काम करता है, ग्लूटामेट. एंड एजिनोमोटो ज्यादा होने से जो सिग्नल्स प्रॉब्लम हो रहा था एंड जो आपका लर्निंग एंड मेमोरी प्रॉब्लम है, वो भी जो लर्निंग और मेमोरी का जो इश्यूज वो भी ग्लूटामिक एसिड कंट्रोल करता है. तो कहीं ना कहीं आपका लर्निंग एबिलिटी, आपका मेमोरी एबिलिटी, द सिग्नल्स पास करने का ब्रेन का एबिलिटी डिस्टर्ब हो रहा था. तो बहुत जगह एजिनोमोटो उन्होंने क्या किया, बैन लगाया. इट वाज मोस्टली यूज्ड फॉर अ टेस्ट, लेकिन लोग ज्यादा प्रोपोर्शन में डाल रहे थे चाइनीज फूड में एंड इट वाज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम टू द ब्रेन एंड ऑल एंड नर्वस सिस्टम. तो इसके ऊपर बैन लगा. तो आप देखो फर्मेंटेशन प्रोसेस ब्रेड से बना सकते. ब्रेड के साथ विनेगर, सोया सॉस, monosodium glutamate are used in presently popular Chinese food, also can produced by a microbial fermentation. ये चैप्टर का ही नाम था इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, एंड इन दिस चैप्टर वी गोइंग टू लर्न अबाउट माइक्रोऑर्गेनिजम्स. अभी तो हम लोग हमारे दिमाग में ही है माइक्रोऑर्गेनिजम्स मतलब दे आर नॉट गुड फॉर योर बॉडी बट स्ट्रांग. आप देखो इसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है which we can make with the help of microorganism. Commercial basis पे भी और घर पे भी, domestic level पे भी. देखो the best example is bread as well as vinegar, soya sauce and Ajinomoto. The process is fermentation. Absence of oxygen. समझ में आ रहा है? तो जिसमें भी हम यूज करते हैं microorganisms कॉलेज एज Saccharomyces cerevisiae. इसका मैंने वीडियो भी बनाया है, प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड कैसा है, उसका स्मॉल वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा. एंड द नेम भी जो है आई थिंक सोया सॉस एंड ऑल, इसका आई हैव रिमूव द इमेजेस आल्सो, जिसको मैं आपको शेयर करता हूं. ओके,
तो पहला नाम जो उन्होंने दिया था सैक्रोमाइसेस क्रीवेसी, राइट? आई थिंक दिस इज द, यस, इसका पिक्चर है अपने पास. This is the special type. देख लो, this is the special type of yeast which is added in the dough of cereal to make bread. तो देखो, this is the picture, ऐसा दिखता है. This is the yeast, Saccharomyces cerevisiae is a species of yeast. It has been instrumental in wine making, baking, and brewing since ancient time. It is believed to have been originally isolated from a skin of grapes. Grapes के ऊपर जो fungus growth है ना, जैसे बोलते हैं ना वो लोग ग्रेप्स के ऊपर फंगीसाइड डालते हैं. आप ग्रेप्स खरीद के लेके क्या होगे, उसके ऊपर पूरा वाइट पाउडर लगा होता है. क्यों? क्योंकि फंगस बहुत ज्यादा अटैक करते हैं. द फंगस मोस्टली अटैक ऑन द ग्रेप इज Saccharomyces cerevisiae. उसके स्किन लेयर पे फंगस मिलते हैं. वी कैन गेट दिस फंगस आइसोलेटेड फ्रॉम द स्किन ऑफ ग्रेप्स. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है? दिस इज द जो नाम दिया था, दिस इज द ब्रीवर्स भी बोलते हैं. दिस इज द Saccharomyces cerevisiae जो हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेड. तो ईस्ट का डाउट क्लियर हो गया. कौन सा ईस्ट हम जो यूज करते हैं, मैंने नाम पढ़ाया था, मैंने आपको फीचर्स भी दिखा दिया. और आई थिंक सोया सॉस का भी मैंने, यस, दिस इज द सोया सॉस. यस, ठीक है आपको सोया सॉस एंड स्पेल्ड इन ब्रिटिश सोया सॉस इन ईस्टर्न एशियन लिक्विड condiment of Chinese origin, traditionally made by fermented paste of soya bean. मैंने आपको बताया था सोयाबीन यूज होता है ना. सोयाबीन्स, रोस्टेड ग्रेन्स, ब्राइन, Aspergillus oryzae और Aspergillus molds. These are the type of different fungi. भी फंगस है. ये फंगस को ऐड करके फर्मेंटेशन करके we can make a sauce. ऐसा हम सॉस जनरेट कर सकते हैं, which is called soya sauce. This type of food product is also can be made with the help of a yeast और fermentation process. and कौन सा? तो Aspergillus oryzae and Aspergillus zozae is the molds जो है वो एक फंगस है. तो this type of fungus we can use for the preparation of soya sauce and ingredients are soya beans, roasted grain and bread. Understood? This is the soya sauce. इतना important नहीं है, but soya sauce सर क्या होता है? तो मैंने पिक्चर ले लिया भाई, soya sauce क्या होता है. and अजीनोमोटो के मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया. it is a made from glutamic acid glutamate and formula is C5H8NO4Na. ओके, विच इज नॉट गुड फॉर बॉडी क्योंकि नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा डैमेज करता है. अंडरस्टूड? से बहुत सारे पिक्चर्स निकाले, ऑल आई विल शेयर विथ यू एक एक करके. चैप्टर्स बहुत डिफिकल्ट है, मैंने पहले बोला. ऐसे ऐसे नाम ऐसे ऐसे है जो आपने कभी सुनना नहीं होगा, इसलिए मुझे बहुत सारा वीडियोस और पिक्चर्स निकालना पड़ रहा है. अगेन, प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, ब्रेड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो निकाला, फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड. लेट अस गो थ्रू दिस, तो आपको समझ में आएगा हाउ द ब्रेड इज फॉर्म. Staple for people all over the world. Smothered in butter and jelly or dipped in gravy, it's a delicious treat that's hard to resist. And we're willing to bet you can't resist the opportunity to find out what goes into the making of your daily bread. Over 3,000 years ago, in the time of King Tut, Egyptians were already baking 40 varieties of leavened bread. The Greeks' contribution to this history was the oven, and 70 varieties of flavored breads. Bread so good that the Romans took the Greek bakers to Rome and their ovens to Gaul. By the Middle Ages, bread had become the primary food of Western Europe. Multigrain bread is made from several ingredients such as flaxseed, buckwheat, soy, and millet. This protective grill prevents foreign matter from accidentally falling into the recipe mix, a recipe that calls for half a ton of flour. The ingredients, ground in a mill, are kept in these 36 enormous containers. We begin by mixing the ingredients together. These kneading troughs are used to ferment the yeast, a step which takes 3 hours. The fermenting yeast makes the dough rise considerably. This huge mixer kneads the dough for about 8 minutes. When thoroughly homogeneous, the contents are emptied into a large tub. The dough weighs a little over a ton.
The dough is loaded onto a slide situated above the dough divider. At the bottom of the machine, a small hole allows the dough to escape. Two mechanically operated arms cut the dough pieces into equal lengths. It forms 192 of these a minute. The dough then falls onto a conveyor. Here, dough pieces are rolled into balls, which can be more easily worked. The dough balls are floured to prevent them from sticking during their transport and when they're molded. Here, the balls of dough leave the divider and go to the molder. During transport, the dough can rest, allowing the yeast to act. The dough is then folded and rolled. The machine can handle 3 per second, for a total of 11,500 an hour. The dough is rolled out to the exact size and falls into baking molds. Here we see the making of hot dog rolls. These little dough balls have to be shaped lengthwise and fermented before molding. Here the hot dog rolls are being machine molded. Dough pieces must not touch one another, so they're spaced apart by a small mechanical arm. Now we go back to multigrain bread production. Squatted down at the bottom of the molds, the dough pieces go into the prover, where they rise for an hour at 110 degrees Fahrenheit and at 70% humidity. Then they bake for 20 minutes at 490 degrees. When finally baked, the loaves end up with a nice golden color. A vacuum system draws the loaves from their molds. They're then placed on a conveyor to cool. A guidance system takes care of carrying the breads to various sections of the bakery. When well cooled, breads go to the slicer, which cuts 65 loaves a minute. They are sliced by 7-foot wide and 16-inch long steel saw blades. These blades are changed every 2 weeks. Sliced loaves are automatically packed at 65 per minute. They're now ready for shipping. आदमी very clearly बता दिया how the bread formation take place. बहुत clearly बताया the bread formed of yeast, rise होता है and they cut in the pieces. I think this much is more than enough to understand how the bread is formed. Okay, clear to everybody. I can go to the next topic. ठीक है, तो मैंने explain भी कर दिया and already I have told you कि bread formations कहता है, मैंने videos भी दिखा दिया. The next is what? Next is what? Vinegar. The next topic is how the vinegar production take place with the help of, again, by the help of a certain type of microbes. मैंने आपको पहले ही बताया, खाली ब्रेड के बारे में नहीं दिया, और भी शायद विनेगर, सोया सॉस, एजिनोमोटो, ऐसे प्रोडक्ट्स भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन. एजिनोमोटो के बारे में भी आपको बताया, सोया सॉस के बारे में बताया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट विनेगर. अंडरस्टूड हाउ द विनेगर प्रोडक्शंस टेक प्लेस. तो विनेगर के बारे में क्या दिया, लेट अस लर्न. ओके, व्हाट दे गिवन. तो विनेगर, विनेगर एवरीबॉडी नो व्हाट इज विनेगर, राइट? आपने देखा भी होगा, राइट? प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे भी यूज करते हैं हम लोग. इट इज एक्चुअली अ एसिटिक एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड. तो व्हाट इज विनेगर, तो मैं रीड करता हूँ. आई हैव अ टेक्स्ट बुक, मैं रीड करता हूँ. विनेगर इज ईच कंट्री of the world to impart a SAR test to food material. हम बहुत सारे फूड में यूज करते हैं, खाने बनाने में भी यूज करते हैं, आपको मालूम होगा. Impart SAR test to the food materials and mostly for the preservations. तो एसिड होने के नाते बैक्टीरिया इजीली ग्रो नहीं होता. मैंने आपको बताया it contains actually acetic acid. Okay, और for preservation of pickles, sauce, ketchup, chutneys, इनको प्रिजर्व करने के लिए भी हम उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या ऐड करते हैं बेटा, विनेगर. एंड विनेगर इज आल्सो कैन बी ऑब्टेन्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हम लर्न कर रहे हैं वेयर द पूरे चैप्टर में हम लर्न करेंगे हाउ द माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस. द इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी. एथेनॉल
एंड अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला. अभी कैसे बनाते हैं विनेगर बनाना इतना इजी नहीं. व्हाट इज देन फर्स्ट ethanol and alcohol is obtained by the fermentation of carbon compound. आपको मालूम है हमने एथेनॉल लर्न किया था इन द 9th स्टैंडर्ड. विद द हेल्प ऑफ ईस्ट वी कैन मेक अ एथेनॉल मोलासेस. याद आ रहा है मोलासेस शुगर केन तो दिया एथेनॉल एंड अल्कोहल. पहले हमको एथेनॉल बनाना पड़ेगा. टू मेक अ विनेगर वी हैव टू फॉलो 3 डिफरेंट स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप में यू हैव टू फॉर्म अल्कोहल. तो एथेनॉल एंड अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड by the fermentation of carbon compounds like कोई भी फ्रूट जूसेस, मैपल सिरप और लीव्स आते हैं ना रेड एंड ऑल रेड मैपल लीव्स. आपको उसका पिक्चर्स मैंने निकाला मैं आपको दिखाऊंगा. शुगर मोलासेस तो आपको पता है. स्टार्च ऑफ द रूट्स, रूट्स का स्टार्च भी आप यूज कर सकते हो. जैसे बीट रूट है ना उसका भी पिक्चर्स में बताऊंगा. बीट रूट का स्टार्च यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ईस्ट कॉल्ड अगेन साइक्लोमेसिस क्रिवेसी जो ब्रेड के लिए यूज किया था. सेम ईस्ट यूज करना है. तो फर्स्ट यू हैव टू मेक एथेनॉल. एथेनॉल कैसे बनाओगे विद हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करोगे कुछ भी चलेगा. या फ्रूट जूसेस चलेगा, मैपल सिरप चलेगा, शुगर मोलासेस चलेगा या स्टार्च ऑफ फ्रूट जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ क्या होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए. ऐसा फूड प्रोडक्ट्स विच कंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर सैक्रोमेसिस क्रिवेसी ऐड कर दो. फर्मेंटेशन प्रोसेस विल टेक प्लेस एंड फाइनली इथेनॉल विल फॉर्म. व्हाट इज फर्मेंटेशन? Chemical reaction taking place in the absence of oxygen, and what is formed? Ethanol and carbon dioxide is formed. The ethanol formation will take place. Ethanol बन गया. Now एथेनॉल बनाना बहुत इजी है आपको पता है. नो व्हाट टू डू. अब एथेनॉल से हम लोग एसिटिक एसिड बनाएंगे कि मैंने आपको बताया विनेगर इज एसिटिक एसिड. नाउ हाउ टू मेक एथेनॉल टू एसिटिक एसिड. नेक्स्ट पेज पे दिया है. विल हैव टू गो टू द नेक्स्ट पेज. ओके ये तो हो गया. ये तो बहुत इजी है. लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है. यस ओके व्हाट दे हैव गिवन द नेक्स्ट पेज. ध्यान से देखना. मिक्सचर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स लाइक एसिटोबैक्टर and glucanobacter. दो टाइप का बैक्टीरिया which is acetobacter and glucanobacter is mixed with ethanol for its microbial degradation. अभी जो एथेनॉल बन गया वो एथेनॉल को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा एथेनोइक एसिड. एसिटिक एसिड मतलब एथेनोइक एसिड. एसिटिक एसिड मींस एथेनोइक एसिड. तो यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू अ एसिटिक एसिड. उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको बैक्टीरिया ऐड करना पड़ेगा. तो जो इथेनॉल अपने फर्मेंटेशन से बनाया है उसके अंदर ऐड बैक्टीरियल स्ट्रेन्स लाइक एसिटोबैक्टर एंड ग्लो. याद रखने क्वेश्चन आ सकता है फॉर्मेशन ऑफ विनेगर. इससे बी सीरियस. इसका 3 डिफरेंट स्टेप है. पहला है फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन. सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड विद इथेनॉल. हाउ टू मेक अ एथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड विद एथेनॉल. उसके अंदर जो एथेनॉल आपने फर्मेंटेशन से निकाला था उसके अंदर यू हैव टू 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकोनोबैक्टर बैक्टीरिया यू विल हैव टू ऐड इज मिक्स विद एथेनॉल for its microbial degradation. And microbial degradation start होगा. This microbe will degrade the ethanol and acetic acid and other byproducts are obtained. और उसके बाद जब माइक्रोब इसके ऊपर डिग्रेड करेंगे एथेनॉल को then finally acetic acid is produced. Then acetic acid is separated. इसमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट है. हमको क्या चाहिए acetic acid. The acetic acid is separated from the mixture by a rarefaction. Rarefaction मतलब crystallizations. You know what is crystallization? Such substance form a crystal on the surface. Acetic acid को they convert into a glacial acetic acid which is called as a solid acetic acid which form a crystals. तो with the help of crystallization ऊपर crystals form हो जाता है. तो rarefaction का मतलब वो light वाला rarefaction नहीं, sound वाला sorry rarefaction नहीं, compression rarefaction. Confuse मत होना. It is crystallization in the means of chemistry. With the help of crystallization, acetic acid form, पूरा acetic acid crystals form क्या पर आ जाएगा and we can remove the acetic acid in the form of crystals. अभी भी विनेगर नहीं बना उसके बाद हमें और भी कुछ करना है. क्या करना है acetic acid is bleached with the help of potassium ferrocyanide. What is bleaching? Bleaching मतलब या डीकलराइज करना या किलिंग द बैक्टीरिया. क्लोरीन पाउडर डालते हैं स्विमिंग पूल में एज अ ब्लीचिंग एजेंट. क्यों डालते हो बेटा? टू किल द बैक्टीरिया. तो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को किल कर सकते. कोई और बैक्टीरिया क्योंकि हमने ऊपर से बैक्टीरियल स्ट्रेन्स ऐड किया था तो और बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हमको विनेगर में नहीं चाहिए. तो उसके पहले एसिटिक एसिड को विनेगर में कन्वर्ट करने से पहले इसको ब्लीचिंग करना पड़ेगा. एंड ब्लीचिंग करने के लिए यहाँ पे क्लोरीन यूज नहीं करते, यहाँ पे यूज करते हैं पोटासियम ferrocyanide. is a strong bleaching agent, is an inorganic compound. Inorganic compound मतलब आपको मालूम है ना which is not obtained from a living plants and animals. And the formula is chemical formula भी मैं बताता हूँ अगर किसी को चाहिए देखे लाओ. K4 मतलब पोटेशियम. K4 ब्रैकेट Fe. Fe मतलब आयन. अगेन ब्रैकेट
C मतलब कार्बन, N मतलब नाइट्रोजन, CN, क्लोज द ब्रैकेट 6, नीचे 6 डालो, then close the bracket, 3 molecules of water, 3H2O. Again I am repeating, potassium ferrocyanide is an inorganic compound. The formula is K4 bracket Fe, again bracket Cn, bracket 6, bracket close, and 3 molecules of water, 3H2O. This is a strong bleaching agent, is used to bleach the acidic solution, जिससे सारे बैक्टीरियल स्ट्रेन जो होंगे अनवांटेड वो मर जाएंगे. Then it is pasteurized. What is pasteurized? Heating the substance for between 70 to 90 degrees Celsius for 10 to 20 minutes. Pasteurization का मतलब किसी सब्सटेंस को हीट करना at a temperature of 70 to 90 तक for 10 to 20 minutes is called pasteurization. फिर इसको pasteurize करो and finally a small amount of SO2 sulfur dioxide हम mix करते हैं and then a vinegar is produced. याद रखना vinegar produce करना भी इतना easy नहीं. आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन आ जाएगा हाउ द विनेगर इज प्रोड्यूस. उसमें 3 स्टेप है. पहला स्टेप क्या है? विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोड्यूस एथेनॉल. एथेनॉल हो गया, एथेनॉल को माइक्रोबियल डिग्रेडेशन करो विद द हेल्प ऑफ एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकोनोबैक्टर. वो हो गया, एसिटिक एसिड मिल गया, उसको ब्लीच करो विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, उसको पेस्चराइजेशन करो, उसके अंदर SO2 ऐड करो एंड फाइनली यू विल गेट अ विनेगर. Fermentation, microbial degradation, bleaching and pasteurization, and finally you get a vinegar. This is the step you will write in the exam. और question आ गया, explain the formation of vinegar. Anybody have doubt? vinegar एकदम clear होगा कैसे बनता है. पहले इथेनॉल बनाएंगे, इथेनॉल से एसिटिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड को क्या करेंगे? ब्लीच करेंगे, पेस्चराइज करेंगे and we get a vinegar. This is how the vinegar is formed, mostly on the basis for commercial basis. समझा बेटा? क्लियर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर. ओके, देखो चैप्टर छोटा है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मैं बार बार बता रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बहुत पिक्चर्स दिखाना पड़ेगा. ओके, एक लाइन और मैं रीड कर देता हूँ. सोया सॉस, जो मैंने आगे डायग्राम दिखाया था सोयाबीन का, याद है? सोया सॉस इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ फ्लोर ऑफ व्हीट एंड राइस विद सोयाबीन. बताया था ना मैंने, सोयाबीन के साथ विद द हेल्प ऑफ फंगस कॉल्ड एस्परगिलस ओरिजे. वो मैंने डायग्राम दिखाया था, उसमें नाम था मोल्ड्स, एस्परगिलस ओरिजे. इसका डायग्राम भी तो इधर दिया हुआ है, बाजू में डायग्राम दिखाई दे रहा है. दिस इज द फंगस एस्परगिलस ओरिजे which is used for the production of soya sauce. Maybe it is also one type of a microbial process. Again, this type of yeast or fungus are useful for what? Production of many products. Again, this we are learning about the merits of microorganisms, how the microorganisms are useful to us. समझ में आ रहा है आपको ना? मैंने बहुत सर्च किया था प्रोडक्शन ऑफ विनेगर. ओके, केमिकल प्रोसेस का प्रोडक्शन था, बट कहीं पे भी माइक्रोबियल डिग्रेडेशन नहीं था. मैंने बहुत सर्च किया, बट मुझे कल ये मिला प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल. एथेनॉल प्रोड्यूस हो गया, माइक्रोऑक्साइड करना, एसिटिक एसिड बन जाता है, बाकी प्रोसेस इजी है. तो मैंने आपको वीडियो दिखाऊंगा प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, वेरी स्मॉल वीडियोस है. और बैक्टीरिया के जो स्ट्रेन्स का नाम है, जैसे व्हाट इज एसिटोबैक्टर, व्हाट इज ग्लूकोनोबैक्टर, उनका फोटोज भी मैंने निकाला है, जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगी कौन सा बैक्टीरियल स्ट्रेन्स यूज करते हैं हम लोग. ओके, तो लेट अस टॉक अबाउट द इमेजेस व्हिच आई हैव रिमूव्ड. ओके, इसमें which are the vectors? ओके, देखते हैं एसिटोबैक्टर्स का फोटोज मैंने निकाला है. एसिटोबैक्टर्स, यस, सी हियर एसिटोबैक्टर्स. दिस इज द bacterial strains which is added in a ethanol. दिख रहा है? ethanol to produce acetic acid. दिख रहा है एसिटोबैक्टर? दिस इज हाउ इट लुक्स. ये कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला कि इसका पिक्चर कैसा है, उसका पिक्चर nobody is going to ask. What is the main reason why I am showing this picture? कि आपको क्लियर हो जाए कि सर एक्चुअली एसिटोबैक्टर होता क्या है. What is Acetobacter? So this is how it is the Acetobacter looks. क्योंकि this is all the microscopic diagram. आपको naked ऐसे दिखाई नहीं देगा माइक्रोऑर्गेनिज्म से. Is the genus of acetic and bacteria. देख रहा है? acetic acid bacteria. यानी acetic acid को बनाने में बैक्टीरिया यूज होता है, लिखा भी है. Acetic bacteria characterized by the ability to convert ethanol. Very important sentence. Convert ethanol to acetic acid in the presence of oxygen. ये aerobic respiration शो करता है. ethanol anaerobic, यहाँ पे aerobic. Oxygen of this genus Acetobacter is distinguished by the ability to oxidize lactic acid na lactose and acetate into carbon dioxide and water methanol. Again, this is not important, but what is Acetobacter? It is a aerobic bacteria which can convert ethanol to ethanoic acid. But Acetobacter के साथ एक और बैक्टीरिया हमने ऐड किया था. What was the name of that bacteria? उसके जस्ट नीचे दिया है, दिख रहा है, वो भी पिक्चर्स मैंने निकाला है. इस ग्लूकोनोबैक्टर.
दिस इज ऑल्सो द अनदर बैक्टीरिया। अभी कैसा दिखता है, दिस इज हाउ इट लुक्स। दिमाग में आएगा रीड करते समय, अरे सर ग्लूकोनोबैक्टीरिया क्या होता है, दिस इज हाउ इट लुक्स। इसको दिमाग में भी डालो, इज द जीनस ऑफ बैक्टीरिया इन अगेन एसिटिक एसिड बैक्टीरिया फैमिली। ये भी this also is used for the production of acetic acid. They prefer sugar rich environment, so are sometimes found as a spoilage organism in a beer. They are not known for being pathogenic but can cause a root pathogenic मतलब disease cause तो नहीं करते, can cause a root in a apples root मतलब black layer होता है ना, damage the apples and pears, but it is acetic acid strain bacteria. तो कौन कौन से दो बैक्टीरिया ऐड करते हैं, एसिटोबैक्टर ग्लूकोनोबैक्टर, एंड हाउ दे लुक्स। एकदम क्लियर हो गया बेटा, अंडरस्टूड। देन एस्परगिलिस और जे का तो ऑलरेडी पिक्चर्स दिया हुआ है, आई थिंक आई हैव आल्सो रिव्यू, मैं एक बार देख लेता हूं। एस्परगिलिस और जे का भी मैंने निकाला था, ये देखो दिस इज दैट। किसके लिए होता है, सोया सॉस, द मोल्ड्स व्हिच इज यूज्ड फॉर सोया सॉस, एस्परगिलिस और जे। दिस इज हाउ दे लुक। माइक्रोस्कोपिक फंगस, फंगस है ये, is a filamentous fungus used in yeast to ferment soya beans, देखो तो दिया भी है, to make a soya sauce and fermented bean paste। सोया सॉस बनाने के लिए फंगस यूज होता है। सो दिस आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन हमारे लिए कितना यूज है, कमर्शियल एज वेल डोमेस्टिक। वेदर यू अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है, एवरीबॉडी क्लियर टू एवरीबॉडी, कुछ इश्यूज नहीं है। कैसा बैक्टीरिया फंगस दिखते हैं, और भी मैंने पिक्चर्स आपको दिखाया जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वो बैक्टीरिया के बारे में खाली उसका नाम बोलेंगे, उसके टाइप के बारे में कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। दिस इज ऑल फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन। ओके, हैव रिमूव्ड दिस पिक्चर्स, जिससे आपका डाउट कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर वे क्लियर। अंडरस्टूड। आई हैव टोल्ड यू कि मैंने बहुत वीडियोस निकाला, बट वीडियोस वी हैव नॉट गॉट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। केमिकल प्रोसेस से है बट नॉट बैक्टीरियल प्रोसेस। लेकिन इथेनॉल का मुझे मिला, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, वेरी स्मॉल वीडियो। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू व्हाट इज द प्रोडक्शन। इथेनॉल बन गया तो एसिटिक एसिड बनने में टाइम ही लगेगा। तो लेट अस टॉक अबाउट एथेनॉल। पहले मैं एथेनॉल देख लेते हैं वीडियोस। यस, तो लेट अस, बहुत छोटा वीडियो है, 1 मिनट का। Ethanol is produced from sugarcane juice through a fermentation and distilling process. The juice is first purified by various filtering processes until it is ready to be fermented and mixed with yeast. At this stage, the liquid is called fermented wine. The alcohol contained in the wine is recovered in distillation and rectification columns. Hydrous ethanol, the type used in flex fuel vehicles in Brazil, is produced at this point. To obtain anhydrous ethanol, the type that's mixed with gasoline, the liquid undergoes an additional water removal or dehydration stage. The entire procedure from the arrival of the cane at the mill to the finished product takes 15 hours. 1 ton of sugarcane yields about 85 liters of ethanol. Brazil produces more than 30% of the world's ethanol. It is the top exporter and second largest producer of the biofuel, behind the United States. In the 2010-2011 harvest, production is expected to reach almost 30 billion liters. Ethanol produced in Brazil follows strict technical specifications and international standards. Fermentation of sugar, ethanol production है बहुत easy है। Fermentation, Saccharomyces cerevisiae डालो and the ethanol is produced. Okay, बहुत easy productions. Already उसका videos भी आपने देख लिया। तो I think the how the vinegar is produced, वो concept भी पूरी तरह I think is clear to everybody. विनेगर का प्रोडक्शंस भी सभी को वेरी मच क्लियर हो गया, राइट। तो नाउ वी कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ सम बेवरेजेस। which are all produced with the help of microorganisms. The microorganisms are also useful to produce certain type of beverages. Beverages मतलब कॉफी, वाइन, सीडर है ना। ओके, कैसे, हाउ द मैकेनिज्म्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन, न दिया हुआ है, न सी यार पहले दिया हुआ है, नाम देखो। तो मैं इसको और एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ। यस, नो सी नाम दिया देखो, कैफे अरेबिका दिख रहा है उधर, कैफे अरेबिका नाम दिया हुआ, राइट। आई हैव रिमूव्ड द इंफॉर्मेशन उसके बारे में, एंड ऑल्सो मैंने उसके बारे में आप देखोगे तो आपको पिक्चर्स भी मैं दिखाऊंगा हाउ इट लुक्स। उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन बता दूं तो दिस सीड्स आर फाउंड इन यमन एंड
यमन मतलब अरेबियन कंट्रीज, तो अरेबिका का नाम ही है, इट इज फाउंड इन अरेबियन कंट्रीज। ऐसे टाइप के कॉफी सीड्स है, स्पेशल टाइप ऑफ कॉफी सीड्स, एमन अरेबिकन कॉफी। ओके, दे आर लेस एसिडिक एंड मोर बिटर, बिटरनेस उसके अंदर ज्यादा होता है, एसिडिटी लेवल इज लेस। This Cafe Arabica, again I am repeating, these are the seeds found in a trees of coffee. It is found in a country like Yemen and Yemen, Arabian countries. Okay, and their इनका important characteristics है, they are less acidic and more bitter. कौन सा माइक्रोब यूज करते हैं? We use the microbes Lactobacillus brevis. It is a rod-shaped bacteria, one type of bacteria, Lactobacillus brevis bacteria. And with the help of this microbe, and what is the role? Microbe क्या करता है? It separates the seeds from a fruit. Fruit के अंदर seed है. When you add this microbe, and with the help of microbial process, they will remove the seed directly. So cut करके या hit करके remove नहीं करते. By उसका taste flavor level बढ़ जाता है. And the seeds are removed, and उस seeds को में crush करके they make a beverages called coffee. जिसका taste level थोड़ा अच्छा होता है, bitterness high है, acidic level less है. So there are certain beverages are also can be made with the help of microorganisms. The first beverages is coffee. उसमें mostly कौन सा fruit हम लोग use करते हैं? Cafe Arabica, which is found in Arabian countries. Special type of fruits of a coffee. एंड उसको कॉफी उसको उसके अंदर सीड्स निकालने के लिए कौन सा माइक्रोब में यूज करते हैं? लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। दिस ऑल माइक्रोब्स का पिक्चर्स मैंने निकाला है। कैफे अरेबिका कैसे दिखता है उसका भी पिक्चर्स निकाला, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई विल शेयर विद यू। इन पैसे टेबल डिस्कस कर लेता है, देन मैं शेयर करता, वी कैन सेव द टाइम। पहला समझ में है? क्वेश्चन आ गया, नेम सम बेवरेजेस और प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस व्हिच इज डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा। पहला है कैफे अरेबिका, ये फ्रूट का नाम है। उसके अंदर मैं माइक्रोब ऐड करूंगा लैक्टोबैसिलस ब्रेविस। ये बैक्टीरिया उसके अंदर जाएगा, विल डू द केमिकल प्रोसेस या माइक्रोबियल प्रोसेस, एंड धीरे धीरे क्या करेगा? फ्रूट्स के अंदर से सीड्स को बाहर निकाल देगा। फ्रूट्स को एक्चुअली खाएगा एंड सीड्स बाहर निकाल जाएंगे। डेड सीड्स आई कैन क्रश एंड गेट अ कॉफी। अंडरस्टूड? इससे टेस्ट फ्लेवर लेवल बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट देखो, इज थियोब्रोमा कोकोआ। कोकोआ मतलब मालूम है, चॉकलेट्स में आपने खाए हो कोकोआ पाउडर, बराबर? ओके, उसके लिए देखो थियोब्रोमा क्या दिया है, इज थियोब्रोमा कोकोआ। उसके बारे में मैंने निकाला है, स्मॉल एवरग्रीन ट्री, ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ अमेरिका नियर द टॉप इक्वेटर। इक्वेटर के पास पाए जाते हैं ट्रीज, स्मॉल होते हैं, एवरग्रीन ट्री ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ अमेरिका में पाए जाते हैं नियर द इक्वेटर। दे आर फाउंड मोस्टली इन द यूएसए। स्मॉल ट्रीज होते हैं एवरग्रीन, दिस टाइप ऑफ। ओके, इसके अंदर हम लोग दिस जो सारा नाम दिया, दिस ऑल आर द फंगस। याद रखना, ऊपर जो आपने यूज किया था कॉफी बनाने के लिए वाज बैक्टीरिया, एंड कोकोआ बनाने के लिए आप जो मैक्रोब यूज करोगे इज अ फंगस, कैंडिडा। ओके, नाम यहाँ पे पढ़ देता हूं मैं, हेंसेनुला, then Phaecia, Saccharomyces. These all are the 4 different type of fungus which are added to this type of fruit. Again, they will act on the fruit and the seeds will be separated, and that seeds हम लोग क्या करेंगे? We make a cocoa powder. आपको मालूम है किसके लिए यूज होता है? For chocolate तो बहुत फेमस। तो चॉकलेट्स मिल्क पाउडर या कुछ शेक्स भी आता है जो हम लोग पीते हैं ना, चॉकलेट पाउडर एंड चॉकलेट बेवरेजेस के लिए यूज कर सकते हैं। These are the beverages which is made by the help of microorganisms. This chapter हम लोग कर रहे हैं the merits, खाली merits पढ़ रहे हैं हम लोग। How the microbes are useful, बहुत ज़्यादा यूज है माइक्रोब्स का। आगे चल के माइक्रोबायोलॉजी का बहुत लेवल बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा। ग्रेप्स हम लोग वाइन बनाते हैं, सबको पता होगा। अगेन Saccharomyces cerevisiae, कौन सा है? Which is used for the production of bread। याद है Saccharomyces cerevisiae? Fermentation of juice। Fermentation मतलब a chemical reaction take place in the absence of oxygen and produce ethanol and carbon dioxide, alcohol, and this is wine. Grapes से wine बनाना बहुत simple है। Add a fungus called Saccharomyces cerevisiae. Then apple cider juice पता है आपको? Again उसमें भी Saccharomyces cerevisiae add करके fermentation juice same like a grapes and apple cider apple juice बन सकता है। So these are the beverages which we make with the help of microorganisms. We can make coffee, we can make a cocoa, we can make a wine, we can make a what? We can make a cider.
This all we can make. So heading ही था production of beverages with the help of microorganisms. ओके अभी सर ये कैफे अरेबिक या अरेबिक कैसा दिखता है? यस आई हैव रिमूव्ड द पिक्चर्स. लैक्टोबैसिलस ब्रेविस सर कैसा बैक्टीरिया? यस आई हैव रिमूव्ड द पिक्चर्स. तो खाली आपको ये देखना है, उसको परमानेंटली दिमाग में बिठा लेना है. बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसका पिक्चर्स कैसा क्या दिखता है, नेम इज इंपॉर्टेंट, बट आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज का दे रहा हूँ. आप मुझे बाद में पूछोगे सर इसका okay co-productions, vinegar, beer, and then again wine, and then all cider. This all can be produced with the help of what? With the help of microorganisms. Understood? Clear to everybody? Okay, let us show the pictures. Okay, let us go to the images. The first name is Coffee Arabica. I think I have removed the pictures of Coffee Arabica. Let me check. देखो Arabica coffee. This is the special coffee seeds of fruits found in Arabian country. Now this is how it looks. ठीक है? Arabica coffee. ये ना इधर. Seeds दिखाई दे रहा है बेटा? This is how the seeds look. ऐसे रहते हैं. Coffee Arabica, also known as Arabian coffee, coffee shababrica, mountain coffee, Arabica coffee species of coffee. It is believed to be the first species of coffee to be cultivated, and its dominant cultivar represents about 60% of global production. Almost इससे ही होता है. This is how it looks. Arabica coffee कैसा होता है सर? तो this is how it looks. ये इस तरह दिखता है. खाली इतना याद रखना. This is the Arabica coffee. इसमें हम लोग कौन सा बैक्टीरिया ऐड करते हैं? Lactobacillus brevis. तो सर वो बैक्टीरिया कैसे दिखता है? How is the Lactobacillus brevis? Yes, that also have removed. तो Lactobacillus brevis देख लेते हैं हम लोग. Yes, this is the picture. This is the bacteria we add in Arabic coffee. Yes, sir. Is a type of lactic bacteria found. Lactic acid, lactic acid is a type of lactic acid bacteria found in milk products and in some plants as they decompose. उनके अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है which can be used for making of coffee. Because these bacteria also used for making wine and beer भी बना सकते हैं. Understood? Yogurt production में भी यूज होता है, but यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं we are making a coffee with the help of bacteria. Clear? No doubt? समझ में आ रहा है? Okay. तो कॉफी क्लियर हो गया बेटा? How the coffee formations एकदम क्लियर हो गया, कैसे बनता है? Then is the Theobroma cocoa. Cocoa उसका भी आई थिंक पिक्चर्स हैव रिमूव्ड. कोको का भी मैंने निकाला है, तो लेट अस जस्ट कोकोआ ट्री जो बात कर रहे थे हम लोग. दिस इज हाउ दे लुक. स्मॉल एवरग्रीन. यस, दिस इज हाउ दे लुक. दिख रहा है फ्रूट्स है ना? इसी को अंदर हम लोग फंगस को ऐड करते हैं एंड देन वी मेक अ कोकोआ पाउडर या कोकोआ जूसेस. दिस इज हाउ दे लुक्स. यूज्ड टू मेक चॉकलेट लिक्वर, कोकोआ सली, कोकोआ बटर. चॉकलेट फॉर्मेशन ज्यादा फेमस है इसके लिए, कोकोआ पाउडर. दिस इज थियो, देखो ये नाम दिया था थियोब्रोमा कोकोआ. ये नाम दिया टेक्स्ट बुक में थियोब्रोमा. नाउ दिस इज हाउ दे लुक्स. और इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं? वी ऐड अ फंगस एंड फाइनली अ कोकोआ पाउडर इज जनरेटेड व्हिच कैन यूज टू मेक अ चॉकलेट. क्या लिक्विड व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग बेवरेजेस. अंडरस्टूड? कौन कौन सा फंगस? मैंने 4 फंगस का नाम दिया था. आप देखो पहला नाम दिया तुमने कैंडिडा. आई थिंक कैंडिडा का भी आई हैव रिमूव्ड द पिक्चर्स फॉर कैंडिडा. लेट अस सर्च फॉर कैंडिडा. किधर है कैंडिडा फंगस? दिस इज हाउ लुक्स कैंडिडा फंगस. This type of fungus we add into the cocoa fruit for production of cocoa. खाली बिचारा दिस इज कैंडिडा फंगस. ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है. हाउ इट लुक्स खाली आप लोग को समझने के लिए. देन हैंसुनेला का फंगस आई थिंक आल्सो हैव रिमूव्ड. हाउ इट लुक्स. यस, see this is how it looks. Fungus है. It's हैंसुनेला fungus used to make a cocoa powder. Fungus, हाँ याद रखना fungus. Then now इसमें दिया फिशिया.
I think that also every यहाँ पे this fungus also we add to make a cocoa powder. This fungus we use is same like a from Phaeacia और जो Candida hensula थोड़ा मैच होते हैं. And the next is the Saccharomyces. This is Saccharomyces. Okay, this is Saccharomyces is the fungus we use. This is the fourth fungus we add in a Theobroma cocoa for the formation of cocoa. This is the fungus. These all type of 4 fungus are added into a Theobroma cocoa, and finally the cocoa is formed. Then grapes और apple दोनों के लिए Saccharomyces cerevisiae use करते हैं. I think yes, here is the picture of Saccharomyces cerevisiae. This is used for the production of wine and cider. A species of yeast has been instrumental in wine making, baking, and brewing since ancient times. It is believed to have been originally isolated from the skin of the grape. ये पहले भी हमने डिस्कस कर चुके हैं Saccharomyces वाइन मेकिंग वाला Saccharomyces cerevisiae है ना, डिस्कस कर चुके. The same thing. Understood? This is what the microbes are used for making beverages. तो नो डाउट एकदम क्लियर हो गया. हमने ब्रेड फॉर्मेशन देखा, हाउ द एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस, विनेगर इज प्रोड्यूस हमने देखा, एंड हाउ सोया सॉस इज प्रोड्यूस हमने देखा, एंड फोर्थ चीज हमने पढ़ा हाउ द बेवरेजेस आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, नेक्स्ट स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक जो दिया हुआ है. थोड़ा फास्ट भी हमको जाना पड़ेगा बिकॉज दिस चैप्टर विल टेक अ टाइम. मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है. ओके, and we have to explain everything. हर एक चीज हमको रीड करना पड़ेगा and all we have to do. तो थोड़ा डिफिकल्ट तो है. Understood? But again, don't worry about the portion, तो हो जाएगा. ठीक है. Now question there. Can you tell? Questions पूछा. नीचे उन्होंने को डायग्राम दिया है. Saccharomyces cerevisiae डायग्राम मैंने दिया था. देखो फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ कॉफी भी दिया है. कोकोआ सीड्स के बारे में डायग्राम दिया हुआ है जो ऑलरेडी मैंने पिक्चर आपको दिखाया है. यहाँ पे भी नीचे उन्होंने ब्रीफ में they have given the pictures and everything. Now what next question they've asked? Can you tell which functions are performed by your enzymes? See a question they've given. Which functions are performed by the enzyme secreted in a human digestive system? हमारे human digestive system में certain enzymes are secreted by our alimentary canal, stomach intestine में. Now why these enzymes are secreted? इनका क्या use है? What function they perform? याद रखना जो food हम खाते हैं, the food is simple or complex. सोचो, the food हम खाते हैं is simple or complex? The food is complex. But हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कभी होगा when the food will change into simple. तो हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल कैसे कन्वर्ट होगा? There are certain biochemical process or certain biochemical process take place in a body. Chemical process आपको पता है, bio मतलब a chemical process done with the help of living organisms. हमारे बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हमारे बॉडी में एंजाइम्स है जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं और जो फूड हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करके सिंपल करते हैं. एंड फाइनली इट इज एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन में से इनटू द ब्लड एंड ब्लड सेल्स एंटर एंड पासेस थ्रू द ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? राइट. तो उसने पूछा which function? So the main function is the enzyme secreted in human digestive system breaks down the complex food substance into simple and soluble molecules. If you want किसी को note down करना है, देखिए note down. Enzyme secreted in a human digestive systems break down the complex food substance into simple and soluble molecules. This is the function of enzymes present in a human digestive system. Next question पूछा, give the names. अभी नेम्स भी पूछा कि सर कौन कौन से एंजाइम्स है हमारे बॉडी में जो हमको डाइजेशन में हेल्प करते हैं. मेनी एंजाइम्स, कुछ नेम्स मैं आपको बताऊंगा. पहला है सैलिवरी एमिलेज रिलीज बाय योर सैलिवरी ग्लैंड्स. याद रखना जब हम खाना खाते हैं द डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम योर माउथ इटसेल्फ. आपका डाइजेशन आपके माउथ से होता है. कभी भी खाना फटाफट गल्प नहीं करना चाहिए. अलाउ योर टीथ टू चीव द फूड. टीथ भी बहुत इंपॉर्टेंट, टीथ इंपॉर्टेंट रोल फिल करता है. जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है दे ब्रेक इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस. जितना स्मॉलर पार्टिकल्स होगा उतना बेटर वे हम फूड को डाइजेस्ट कर पाएंगे. तो टीथ आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल बाय चीविंग द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स एंड तुरंत सैलिवरी एमिलेज सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं. दे गेट मिक्स विद द फूड एंड डाइजेशन हमारे माउथ में जाता है. तो स्लोली चीव करना चाहिए. अलाउ द सैलिवरी एमिलेज टू मिक्स विद द फूड. So the first enzyme is salivary amylase
they convert the starch is a complex, starch को maltose, पहले ही जो starch है उसको maltose में convert कर देंगे, starch थोड़ा complex है, maltose थोड़ा उससे simple। तो माउथ के अंदर ही starch maltose में change हो जाता है जब उसके अंदर enzymes called salivary amylase mix होता है। तो first enzyme is salivary amylase, pepsin, pepsins produce होता है, इसमें भी proteins into peptide, proteins is the complex, peptide is a simpler form of proteins, release in the intestine, pepsin, pepsin जो protein पे work करता है, and pepsin है, pepsin, the enzymes which works on the protein, lipase which act on a fat, the pepsins proteins पे act करता है, lipase act on the fat, converts the fats into a fatty acid and glycerol, मतलब a small part of fats, a simple molecule of fat. Then pancreatic amylase again starch into maltose, pancreas release करते हैं starch into maltose. Peptidases is again जो peptides form हुआ है protein से उसको amino acids, तो protein into peptide and peptide finally break into amino acids। देखा है कि पार्ट में ब्रेक होता है, उसमें अलग अलग एग्जाम्पल कर रहे हैं। इट्स पेप्टिडेसेस, PEPTIDASES। देन सुक्रोज इनटू ग्लूकोज, इन सुक्रोज टाइप के there is a sucrase, not sucrose, sucrase, यानी A लगा देना, not O, sucrase is the one type of enzyme which convert the sucrose जो हम खाते हैं into glucose and fructose, sucrose complex है, glucose and fructose simple है। then lactase जो lactose को into glucose and glucose में change करता है, and maltase जो maltose को glucose में change करता है। ऐसे different type of क्या है enzymes है which is present in your body and they help in the digestion of food, और इनका काम है complex food को simple करना। एक बार food simple हो गया then only the blood will absorb, या intestine के अंदर absorption होगा and will enter into the blood and goes to each and every part of the body। inner wall of intestine absorption कभी start करेगा when the food changes into simple। तो क्वेश्चन पूछा है give the name of some enzymes again, salivary amylase starch into maltose, pepsin proteins into peptide, lipase fats into fatty acids and glycerol, pancreatic amylase starch into maltose, peptidases peptides into amino acids, sucrose into glucose and fructose, lactose into glucose, and maltose into glucose। These are the different type of enzymes and the functions के बारे में मैंने आपको बताया। Clear to everybody? तो दोनों क्वेश्चन समझ में आप लोग को कुछ इश्यूज नहीं है बेटा? Clear to everybody? Understood? Okay, तो लेट अस मैं आगे रीड करो। ओके, तो आगे क्या दिया देखो, माइक्रोबियल एंजाइम्स के बारे में क्या दिया है। Nowadays, instead of chemical catalyst, what is catalyst? Catalyst, chemical catalyst, chemical मतलब chemical substance, catalyst मतलब substance which doesn't take part in chemical reaction but speed up the chemical reaction। जितने भी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में केमिकल कैटलिस्ट को यूज किया जाता है। केमिकल कैटलिस्ट वर्क करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, मतलब जो रिएक्शंस को फास्टर करते हैं, कुछ रिएक्शंस को स्लो कर देते हैं। दोनों इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अभी तक इंडस्ट्रीज में कैटलिस्ट के तौर पे हम क्या यूज करते थे? हम केमिकल यूज करते थे। क्या केमिकल कैटलिस्ट का ड्रॉबैक हो सकता है? यस, ड्रॉबैक हो सकता है। Now you will shock to hear, अभी instead of using a chemical catalyst, the industries are using enzymes, microorganism use कर रहे थे catalyst। There are many type of microorganisms जो catalyst का काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम लोग केमिकल यूज करते थे, now we are using a microorganisms। क्या हमारे लिए बेटर है? इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल कैटलिस्ट, अगर हम लोग माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज करेंगे कैटलिस्ट, तो क्या हमारे लिए बेटर है? यस, इट इज बेटर फॉर अस, बिकॉज जिससे वेस्ट कम क्रिएट होगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वी कैन कंट्रोल द पोल्यूशन। और सर्टेन जो अनवांटेड स्टेप्स है शायद वो भी रिड्यूस कर लेंगे हम लोग। वो कैटलिस्ट को यूज करने के लिए भी बहुत सारे अनवांटेड स्टेप्स हमको यूज करना पड़ता था, वो स्टेप भी यूज नहीं करना पड़ेगा, कॉस्ट भी हमारा बच जाएगा, and there will be no pollution। तो देखो, there are microorganisms are used in industries as a catalyst। मैंने आपको बताया the microorganisms are very useful, काम करते हैं, but there are many microorganisms जो हमारे लिए better है, useful है। अभी तो हमने बहुत सारे माइक्रोब्स पढ़े, उसमें से एक है some microbes are used in industry as a catalyst। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट नेम है, बहुत ध्यान से देखना। ओके,
मैं आज टॉपिक खत्म करके ही रहूंगा। नॉट एक्सपैंडिंग। ठीक है, मैं टेक्स्ट बुक से रीड कर दो, ध्यान देना। Nowadays, instead of chemical catalysts, microbial enzymes are used in chemical industries. These enzymes are active. इनका पॉजिटिव देखो, इनका मेरिट्स देखो। These enzymes are active at low temperature. वो जो केमिकल कैटलिस्ट है लो टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते, but these enzymes can act at a low temperature, at low pH value and at low pressure. Low pH, लो टेम्परेचर पे ये एंजाइम्स काम कर पाते हैं जो केमिकल कैटलिस्ट नहीं कर सकते। इनका मेरिट्स देखो। These enzymes are active at low temperature, low pH and pressure, due to which energy is saved. अगर लो टेम्परेचर पे काम करेंगे तो आपको फ्यूल कम लगेगा। पहला चीज हो गया, आपका एनर्जी बच गया। Your energy will be saved. And erosion proof instrument, आपको इरोजन मतलब, what is erosion मतलब रस्टिंग। तो केमिकल कैटलिस्ट से इरोजन होता था तो आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता था जो इरोजन फ्री हो, इरोजन ना हो, इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट। तो कैटलिस्ट यूज करने के लिए पहले इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट लेके आओ, देन पुट द केमिकल कैटलिस्ट। और हम केमिकल कैटलिस्ट यूज ही नहीं करेंगे, देयर इज नो नीड ऑफ इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट। अगेन कॉस्ट बच गया हमारा, इंस्ट्रूमेंट्स कम लग रहे हैं। ओके, और आल्सो नॉट नेसेसरी। एंजाइम्स कैरी आउट स्पेसिफिक प्रोसेस एंड हेंस अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स। जो अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स बन रहे थे, अननेसेसरी जो बाय प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं वो नहीं बनेंगे, यानी अननेसेसरी वेस्ट विल नॉट बी क्रिएटेड। अंडरस्टूड? एंड नॉट फॉर्म, ड्यू टू विच एक्सपेंसेस ऑन प्यूरिफिकेशन, और उनको प्यूरिफाई करने के लिए जो एक्सपेंसेस लग रहा था वो भी मिनिमाइज हो जाए। आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आ गया, व्हाई द एंजाइम्स आर बेटर देन अ केमिकल कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट इज बेटर देन, क्यों, क्या क्या मेरिट? अगेन मैं रिपीट करता हूँ, दीज एंजाइम्स आर एक्टिव एट लो टेम्परेचर, एक्टिव एट लो पीएच वैल्यू, एक्टिव एट लो प्रेशर, जिसके नाते एनर्जी कैन बी सेव, नो इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड, enzymes carry out specific process and hence unnecessary byproducts are not formed and the expenses required for the purification are minimized. इतना ज्यादा यूजफुल है, कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो जाता है। Now companies are using enzymes as a catalyst. In case of microbial enzymatic reactions, elimination and decomposition of waste material का eliminate करना या decomposition is avoided, enzymes can be reused. और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, केमिकल कैटलिस्ट आपने डाल दिया, वो एक्सपेरिमेंट हो गया, वहां पर केमिकल कैटलिस्ट आप निकाल के फिर से यूज नहीं कर सकते, बट एंजाइम्स यू कैन रीयूज अगेन एंड अगेन। एंजाइम्स कैन बी रीयूज्ड, इतना इंपॉर्टेंट, इसको हम रीयूज कर सकते हैं। एंड सच एंजाइम्स आर इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दिस एंजाइम्स आर इको फ्रेंडली, हमारे लिए बेनिफिशियल है। सम एग्जांपल्स दिया हुआ है, ये नाम बहुत डिफिकल्ट है। The macro enzymes are oxidase or reductases. The first enzymes which is used in the what? In the industry is oxidoreductase. अगर आपको चाहिए आप लिख सकते हो, मैंने इंफॉर्मेशन निकाला है। What do you mean by oxidase, किसके यूज होता है? Is an enzyme that catalyze, मैं catalyze है, they catalyze the transfer of electrons from one molecule. अगर ऐसा कैटलिस्ट चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करो, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के लिए दे यूज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स इन इंडस्ट्री, एंड उस एंजाइम का नाम है ऑक्सीडोरेडुकेटेस। तो इज एन एंजाइम दैट कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल, द रिडक्टेंट आल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ओके, टू अनदर ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है एंड हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल वर्ड में दिस एंजाइम्स हेल्प इन अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो साइंटिस्ट को ऐसा कैटलाइज चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो लोग क्या करेंगे, दे यूज एंजाइम्स कॉल्ड ऑक्सीडोरेडुकेटेस। नेक्स्ट इज द एंजाइम कॉल्ड ट्रांसफरेज, तो वो नीचे नाम दिया ट्रांसफरेज। ये एंजाइम किसके लिए यूज होता है, इसका मैंने इंफॉर्मेशन है, एनी वन ऑफ द क्लास ऑफ एंजाइम दैट इनेक्ट द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप को
एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कैरी करता है ना. व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, जो हम चैप्टर नंबर 9 में लर्न करेंगे, कार्बन कंपाउंड्स. एग्जांपल बता देता हूं मैं. अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला है OH. तो OH इज अल्कोहल, दैट इज फंक्शनल. OH को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो दिस एंजाइम यूज हो सकता है. एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, COH केमिकल फॉर्म फंक्शनल ग्रुप है. कार्बन कंपाउंड से नहीं तो समझ में आएगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना है. तो अगर फंक्शनल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कैरी पास करना है एंड उसके लिए अगर इंडस्ट्री में कैटलिस्ट चाहिए तो लोग कौन सा एंजाइम यूज करेंगे बेटा? दे यूज एंजाइम्स कॉल्ड ट्रांसफरेसेस. देन एंजाइम हाइड्रोलिसिस, उसके बाद में दिया हुआ है, इज एन एंजाइम दैट कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब स्प्लिट द कोवेलेंट बॉन्ड. अगर कोवेलेंट बॉन्ड, यू नो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर कोवेलेंट बॉन्ड को स्प्लिट करना है विथ वाटर, देन कौन सा एंजाइम यूज करते हैं हम लोग? हाइड्रोलिसिस. Hydrolysis is enzyme which acts as a catalyst to break the covalent bond using water. Water is the hydrolysis. Hydro मतलब with respect to water. Next is the lysis. What is lysis? Is an enzyme that catalyze the breaking of various, बहुत सारे chemical bond को break कर सकता है. और हमको chemical reaction में बहुत सारे chemical bond को break करना है तो we can use the enzyme called lysis. Next is the isomeresis. Next is isomeresis. Is an enzyme that convert the molecule from one isomer. What is isomer? Again carbon compounds. Isomers मतलब same chemical formula but different structure is the definition of isomer. Same chemical formula but different structure. Structure को अगर interchange करना है we can use enzyme called isomeresis. And last enzyme is enzyme ligase. Ligase is an enzyme that can catalyze the joining of two large molecules. कैन दो लार्ज मॉलिक्यूल से क्या कर सकता है? ज्वाइन कर सकता है. जब हमने ब्रेकिंग किया था, अगर दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करना है एंड फॉर्मिंग अ न्यू केमिकल बॉन्ड, नया केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशंस करना है, देन वी यूज एंजाइम लिगेस. ऐसे का मतलब ये तो कुछ एंजाइम, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स है. तो देखो डिफरेंट एंजाइम्स है विच वी यूज इन इंडस्ट्रीज. हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं किसके लिए? फॉर कैटालिटिक रिएक्शंस. पहले हम लोग केमिकल यूज करते थे सब काम के लिए, अब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? एंजाइम. क्या एंजाइम्स यूज करना बेटर है? यस बेटर है. एंजाइम्स से कितना मेरिट्स है, इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं. लास्ट पैराग्राफ में रीड कर लेता हूँ, दिस पेज विल बी डन. ओके, लास्ट में क्या दिया? प्रोसेस ऑफ डर्ट. ओके, देन मक यानी वेस्ट, रिमूवल ऑफ ऑकर्स एट लो टेम्परेचर ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एंजाइम. हम एंजाइम्स को डिटर्जेंट, आपको मालूम होगा डिटर्जेंट में एंजाइम्स ऐड कर दे, एड में आता है ना, एंजाइम्स आर एडेड इन डिटर्जेंट, जो डर्ट और मुक को क्या कर सकता है? बाहर निकाल सकता है. डिटर्जेंट के अंदर एंजाइम्स यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल, और वो डर्ट और वेस्ट को, मुक मतलब वेस्ट को निकालने में यूज होता है. ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सिरप पीते हैं ना हम लोग. ग्लूकोज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्न फ्लोर. कॉर्न माने ना, कॉर्न को फ्लोर को, कॉर्न को पीस के उसको फ्लोर तैयार करो, उसको ग्राइंडिंग करके उसको बारीक बारीक फ्लोर में तैयार करो एंड देन ऐड एंजाइम्स. एंड कौन सा एंजाइम दिया है? बेसिली एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस. बेसिली एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस एंजाइम्स हैं, हम उसको ऐड करेंगे और कॉर्न फ्लोर से हम लोग क्या बना सकते हैं? वी कैन मेक अ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सिरप डेवलप कर सकते हैं, अगेन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री लाइक चीज. प्लांट के अंदर के एक्सट्रैक्ट, प्लांट की चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं. कॉस्मेटिक्स, बहुत सारे कॉस्मेटिक सामान प्लांट के एक्सट्रैक्ट से बनते हैं, तो प्लांट के एक्सट्रैक्शंस, टेक्सटाइल, लेदर, पेपर, ऐसे इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे एंजाइम्स को हम यूज कर सकते हैं. आपने देखा माइक्रोबियल एंजाइम्स का यूज एज ए कैटलिस्ट, उसका नाम भी दिया हुआ है. देन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर इन अ डिटर्जेंट फॉर रिमूविंग डर्ट. कैन बी आल्सो बी यूज्ड इन अ कॉर्न फ्लोर फॉर मेकिंग ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. कैन आल्सो बी यूज्ड इन अ प्रिपरेशन ऑफ चीज, प्लांट एक्सट्रैक्शंस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर. इतना ज्यादा उसका मेरिट्स एंड यूजेस है. These all are the merits and uses of microbial enzymes. Again, these are the microorganisms. Yes, these are the microorganisms. तो आपने देखा बहुत सारे माइक्रोब्स यूजफुल है. Yes, they are useful to us. Hello. Understood everybody? सबको समझ में आया? Everybody understood what I have explained today? आज हमने बहुत चीज किया. मैं ब्रेड प्रिपरेशंस, प्रिपरेशन ऑफ विनेगर, सोया सॉस,
बेवरेजेस में कैसे यूज हो सकता है, व्हाट आर द एंजाइम्स यूजफुल फॉर योर बॉडी, क्या कुछ एंजाइम्स हम इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, यस इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं एज ए कैटलिस्ट, वो भी हमने पढ़ा। वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स यूज इन अ कैटलिस्ट। फिर हमने पढ़ा कि उसको हम लोग फ्रुक्टोज भी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं और जूसेस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, पेपर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज हो सकता है, एंड इन द डिटर्जेंट में भी यूज हो सकता है। दिस आर द मेरिट्स ऑफ it. Today I will share the exercise question of chapter number 4 environmental management. तो प्लीज वो पूरा एक्सरसाइज आपको लर्न कर देना है। सोशल हेल्थ का टेस्ट हो गया, नेक्स्ट टेस्ट विल बी ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। उसका सारा 8 वर्कशीट मैंने आपके साथ शेयर किया है, मार्किंग शेयर किया है। आज मैं आपको एक्सरसाइज शेयर करूंगा, एक्सरसाइज पूरा पढ़ लेना, दैट चैप्टर हैज बीन डन। फिर उसका मैं टेस्ट रखूंगा वीक के अंदर, लास्ट में एंडिंग में कभी भी आई विल अनाउंस इट 1 या 2 डेज पहले। 8 वर्कशीट्स हो गया, खाली एक्सरसाइज पढ़ना। एक्सरसाइज बहुत ईजी है, ओके उसमें बहुत सारे क्वेश्चन वर्कशीट के अंदर ही आ जाता है। तो आज जो मैं वर्कशीट शेयर करूंगा एक्सरसाइज को पूरा लर्न कर देना। कभी भी मैं टेस्ट अनाउंस कर सकता हूँ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का। उसके बाद फिर मैं आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का मार्किंग या वर्कशीट शेयर करूंगा। ऐसा करके हम एक एक चैप्टर करते जाएंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।